কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে হবে সব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে, ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা দিতে হবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি সর্বত্র কার্যকর করা হবে বলে আশাবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা। তাদের বক্তব্য, সরকারি সব স্কুল থেকে শুরু করে সব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে হবে। একটি অংশ থেকে অভিযোগ হচ্ছে যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে কোনো আলোচনা বা পড়াশোনা হয় না। ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় সংস্কৃতি আজকের প্রজন্মের বহু ভারতীয় ছেলে মেয়ে ভুলে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ইংরেজিতে পড়াশোনা হলেও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির ঢঙে তারা চলছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে শিক্ষা তো দূরের কথা, বিভিন্ন মিশনারি স্কুল তথা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভারতীয় সংস্কৃতির জাতীয় উৎসবগুলোতেও ছুটি দেওয়া হয় না। ফলে নতুন প্রজন্ম ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে না পারায় তাদের মধ্যে মূল্যবোধেরও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ এবং নীতি নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজরংলাল বাগদা রবিবার শিলিগুড়িতে এই বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, তারা আশাবাদী যে নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি সব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে কার্যকর করার পর সেই সব স্কুলে ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রতিককালে যে অত্যাচার বা নিপীড়ন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে সেই দিকে তারা নজর রাখছেন। তবে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে লড়াই করতে হবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, হিন্দু পরিবারগুলোতেও আবারও 3-4 করে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। কেননা হিন্দু পরিবারগুলো পরিবার পরিকল্পনা মানতে গিয়ে পরিবারের সন্তান সংখ্যা 4 থেকে 3, 3 থেকে 2, 2 থেকে 1-এ নামিয়ে এনেছেন। এতে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গিয়ে ক্রমশ হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, হিন্দুরা অহিংসা এবং শান্তির নীতি বরাবরই বিশ্বাস করে আসছে। হিন্দুরা বারবার আইন শৃঙ্খলা মেনে আসছে, কিন্তু আজ আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা আত্মরক্ষার জন্য নিজেরা ঐক্যবদ্ধ বা সংগঠিত হওয়া অন্যায় কিছু নয়। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडली के कार्यकारी सदस्य हैं, साथ में हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री माननीय श्री बजरंगलाल जी बागड़ा, उनके समीप बैठे हुए हैं हमारे क्षेत्र मंत्री अपने पूरा उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र के मंत्री श्री अमियो सरकार। मैं लक्ष्मण बंसल विश्व हिंदू परिषद उत्तर बंगाल प्रांत का सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे माननीय महामंत्री से आगे कार्रवाई। शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला समुदाय रहा है। हजारों वर्षों से कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता, इसलिए कभी हिंदू समाज ने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। परंतु आत्मरक्षा हिंसा नहीं है। अगर सरकारें अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते या केंद्र सरकार अपनी कानूनी बाध्यताएं सीमाओं के मर्यादाओं के चलते अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, तो पूज्य संतों ने आह्वान किया है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के निमित्त सन्निध होना चाहिए और शक्ति अर्जन करना चाहिए। और आत्मरक्षा का अधिकार भारत का संविधान अपने हर नागरिक को देता है। तो हिंदू भी अब अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए संगठित भी होगा और उसके बाद में हिंसा का एक सही तरीके से जवाब भी देगा। चर्चा हुई और पूज्य संतों ने यह आह्वान किया कि हिंदू समाज को आपसी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के भेद भुलाकर संगठित होना है और एक सशक्त संगठन के रूप में उभर कर इस प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना है। इसके अलावा कुछ विशेष बातें जो हिंदू समाज में संतों के माध्यम से जागरूकता के नाते जागरण के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। कुटुंब प्रबोधन का एक विषय है जिसमें जनसंख्या असंतुलन के विभिन्न कारण हैं। घुसपैठ भी हो रही है पड़ोसी देशों से और साथ में जो जन्म दर की जो वृद्धि दर है उसमें बड़ा भारी अंतर है। हिंदू जन्म दर बहुत कम है, कम होती जा रही है निरंतर। जनसंख्या का जो असंतुलन अनेक भागों में, अनेक प्रांतों में हो रहा है, इस पर चिंता व्यक्त की गई और हिंदू समाज का प्रबोधन करने का निश्चय किया गया कि हर हिंदू परिवार कम से कम 3 या 4 बच्चे अपने परिवार में रखे, क्योंकि अभी यह पिछले 2-3 दशकों से
4 से 3, 3 से 2 और अब तो 2 से 1 पर भी आ गया है। इसलिए पुनः हिंदुओं को इस जनसंख्या के असंतुलन को कम करने के निमित्त कम से कम 3 या 4 बच्चे हिंदू हर परिवार में होने चाहिए। इसके लिए जागरण करेंगे और साथ में विवाह की उम्र भी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और बढ़ते विवाह की उम्र के कारण तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी समाज का प्रबोधन करने का एक संकल्प लिया गया कि लड़की की 21 वर्ष के आसपास और लड़के की 25 वर्ष के आसपास शादी कर दी जाए, जिससे तलाक के मामलों में बड़ी भारी संख्या में कमी आने की संभावना है। साथ साथ में हिंदू संस्कारों में एक परिमार्जन लाया जाए कि परिवारों में जो हिंदू संस्कार हैं, बुजुर्गों का सम्मान है, साधु संतों की सेवा है, मंदिर जाने की जो आदत है, उन सब में भी हिंदू संस्कारों का युवाओं में बालपन से ही प्रतिस्थापना की जाए, इसके विषय में निर्णय लिया गया। जातियों का या वनवासियों को उनकी शिक्षा के अभाव में, उनकी जागरूकता के अभाव में उनका शोषण अनेक प्रकार से हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है और उनमें एक जागरूकता आई है। जिस विश्व हिंदू परिषद का एक प्रोजेक्ट 30 वर्षों से चल रहा था, जिसका टी गार्डन में भी चला, एकल विद्यालय का। एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और वहाँ के टी गार्डन समुदाय में एक जागरूकता का हमने वातावरण बनाया, जिसकी वजह से इस पर बहुत बड़ी संख्या में अंकुश भी लगा है। लेकिन टी गार्डन बहुत है, हमारे विद्यालय उतने हर टी गार्डन में, हर बस्ती में नहीं पहुंच पाए हैं। तो जहाँ तक हमारी पहुंच संभव नहीं हुई है, वहाँ पर अभी भी उनका शोषण मेन स्ट्रीम में ही है। उनको ये बार बार ये कहना कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको समाज से अलग करने का षड्यंत्र है। वनवासी समाज कभी भी मुख्य समाज से अलग नहीं रहा, मुख्य धारा से अलग नहीं रहा। वो एक निवास की बात है कि कोई नगर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई छोटे गांव में रहता है, कोई वन में रहता है। इससे वो समाज की मुख्य धारा से कट नहीं जाता, मुख्य धारा के साथ ही रहे हैं, परंतु शिक्षा के अभाव में उनमें एक जागरूकता कम रही और इसलिए वो शोषण का शिकार हुए। तो विश्व हिंदू परिषद और हमारे विचार परिवार के जितने भी संगठन हैं, लगभग 50 वर्षों से उन सब में शिक्षा और जागरूकता फैलाने की चेष्टा कर ही रहे हैं और बहुत हद तक हमको सफलता भी मिली। विचार परिवार ने भारत सरकार से पिछले कई वर्षों से नई शिक्षा नीति की लागू करने की मांग की थी और जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो सभी पर लागू होती है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, सब पर वो नई शिक्षा नीति लागू होती है। नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू किया जाएगा तो इस समस्या का भी कुछ सीमा तक निदान होगा, हमें आशा है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, परंतु भारतीय युवा या भारतीय समाज अभी भी अपनी संस्कृति में पूरा विश्वास रखता है, पूरी श्रद्धा रखता है। किसी भी पंडाल में आप देखिए, कथा के पंडाल में देखिए, भागवत के पंडाल में देखिए, पूजा अनुष्ठान में देखिए, मंदिरों में देखिए, किसी भी प्रकार से वहाँ संख्या बल में कोई कमी नहीं आई है। परंतु ये एक साथ साथ में दोनों बातें चलती है कि भारतीय परंपरा में भी उनका, संस्कृति में भी उनका विश्वास है, पर वो अपने आप को एक विश्व स्तर पर दुनिया के साथ चलने के क्रम में वो कुछ विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति के भी कुछ जो चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है। तो ये दोनों साथ साथ चल रही है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीय युवाओं को, भारतीय समाज को बचाना होगा, तभी जाकर के भारतीय समाज अपने परंपरागत तरीके से धर्मनिष्ठ समाज बनकर अपनी समृद्धि कर पाएगा। पूरे विश्व में जिस प्रकार से हिंदू धर्मावलंबियों का उत्पीड़न हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में ये केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आज संपन्न हुई। यह उत्पीड़न सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के बाहर भी, बांग्लादेश में हम पिछले 2 महीनों से वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम के सिलसिले में शुरू के 2 दिन तो विरोधी दलों का, उसके बाद में सिर्फ हिंदुओं को
फोकस करके जिस प्रकार की उत्पीड़न वहाँ पर हिंदू समाज का हुआ, अभी भी हो रहा है, और उसके साथ साथ में सुदूर कनाडा में भी हिंदू मंदिरों का जिस प्रकार से दीवारों पर अपशब्द लिखे गए, हिंदू मंदिर के पुजारियों और हिंदू मंदिर के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से वहाँ पर उत्पीड़न हुआ, और वहाँ की सरकार दोनों ही जगह कनाडा में भी और बांग्लादेश में भी पूरे पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में ये सब होता रहा है, और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बांग्लादेश की सरकार या कनाडा की सरकार हिंदुओं के इस उत्पीड़न में नहीं करती। भारत में भी पिछले वर्ष भर में जितने हिंदू धर्म के वार्षिक परंपरागत उत्सव और त्यौहार हैं, पूजा अनुष्ठान हैं, उनमें अनेक प्रकार से अनेक क्षेत्रों में बाधा डाली गई है। गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब में पंडालों में भी तोड़फोड़ की गई है, और बाद में विसर्जन के यात्रा मार्ग में भी जिस प्रकार से जगह जगह पथराव हुए हैं। तो बांग्लादेश की बात को लेकर प्रारंभ से ही विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार के साथ संपर्क में रहकर हमने मांग की थी। शुरू में ये मांग की थी कि हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उनको आने के लिए गेट खोल दिए जाए। उन्होंने हमें अपनी समस्याएं बताई कि 10 हिंदुओं के साथ में 100 मुसलमान भी साथ में आने का संदेह है, इसलिए गेट खोलना समस्या का समाधान नहीं होगा। हिंदुओं को वहीं रहकर अपने आत्मरक्षा के उपाय करने होंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस बात का समर्थन किया, और वहाँ भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश का जो नया प्रशासन आया उस पर इस प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो नए प्रशासन को बधाई का संदेश भेजा, उसमें भी साथ में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उन्होंने एक भरोसा उसमें मांगा था। उसके बाद में भी 3-4 बार हमारी बैठकें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ हुई हैं, जिसमें उन्होंने बार बार बांग्लादेश के प्रशासन को ये बात याद दिलाई है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जिस प्रकार से हो रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। बांग्लादेश एक स्वायत्तशासी सॉवरेन राष्ट्र है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की जो कार्रवाई करने का प्रश्न है वो नहीं उठता। हम वहाँ जाके कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं कर सकते, इसलिए हमने नहीं की। लेकिन सरकार के माध्यम से इस विषय को जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लाने की हम चेष्टा कर रहे हैं।